before such a dynamic and promising group of individuals. Today marks the beginning of a transformative journey and explanation of a technology, innovation, and collaboration learning. As we gather here, each of you brings a unique set of skills, perspectives, and aspirations. It is this diversity that will undoubtedly make our program not just a learning experience but a shared adventure. So I will hand over to Irfan sir, who is the director in charge of Resmotic Solutions. He will be our tutor for today's program. We will start with Python programming. Sir. Thank you. Thank you, Panag. So I welcome to all of you once again. I think we have already met most of the students we already met. We discussed certain criteria of Python in previous session. If there are some new students, they can at least give me a ping or anything else so that I can start my journey accordingly. Okay. Okay, so Fiza is new, Bhumika is new, Anzal Abdullah is new. Okay, Yamin. Okay, okay, 21, 22. So this is your first session, right? So you can raise your hand once again. Okay, 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 okay. So, okay, so let me start our session in a way so that if we have previous students so that they cannot get bored, and we will start our sessions in a very comprehensive way so that everyone will enjoy. Okay, so shall we start? Yes, sir. Okay, so let me know if my screen is visible. Yes, sir, it is. Okay, so let me start. So this course is going to be more like a basics to advance. So we will try to cover each and aspects of Python, which is going to be required for the further, if you are moving towards a Python journey like machine ML data science. So these key points will help you to explore each and every aspects of Python. So in this session, we are going to learn some basics to advanced concept that will help you to get a good grip on Python. Okay, so let's start with a simple example. सेम आई कैन एग्जीक्यूट एंड यू कैन सी अब दोनों स्टेटमेंट्स हो गई एग्जीक्यूट. पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ये. लाइक आई सेड, पाइथन जो है हमारे पास एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो यहाँ पर चीज़ें जो एग्जीक्यूट होगी दे विल बी एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो इस तरीके से पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई. क्लियर. इवन उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ सिंगल कोड यू कैन यूज ऑल्सो ट्रिपल कोड्स. तो आप ट्रिपल कोड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जैसे मैं लिखूंगा वेलकम न्यू सेशन. तो नाउ लेट्स रन इट अगेन. तो आप देखेंगे आउटपुट क्या आ गया हमारे पास. ये तीनों स्टेटमेंट्स फिर से आ गई हमारे पास. सो पहले ये वाली स्टेटमेंट हो गई, फिर उसके बाद दूसरी, और उसके बाद सो इस तरीके से ये भी आपको चीज़ पता चल गई कि जो पाइथन है हमारे पास, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें हमारी चीज़ें जो एग्जीक्यूट होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी एग्जीक्यूट. क्लियर. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है तो आप बोल सकते हैं. एवरीवन. हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir, clear. क्लियर है? ओके ओके ओके. सो हम कमेंट करते हैं. शॉर्टकट आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क दबा सकते हैं. तो उससे क्या हो जाएगा, द होल कोड इज गोइंग टू बी कमिटेड वट एवर यू हैव सिलेक्टेड. इफ यू वांट टू अनकमिटेड, सेम थिंग, यू कैन प्रेस कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क, then it is uncommitted. If I'm pressing control and question mark, so it is again committed. So if I'll try to run it again, and you will see there is going to be no output this time. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कोई भी आउटपुट नहीं है, बिकॉज मैंने उन सभी लाइंस को कमिट किया। जो कमिटेड कोड होता है वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है उसको वो चेक नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल बात। एक प्रिंट एक ऐसी फंक्शन है हमारे पास जिससे हम कोई भी चीज़ डिस्प्ले करा सकते हैं। बट पाइथन में प्रिंट फंक्शन किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने एक एक्सप्रेशन डाल दिया यहाँ पे 3 + 5 / 2। इफ आई रन इट तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, 5.5 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सेम यही चीज़ें अगर आपको पाईचार्म में भी करनी होगी, सो देर इज नो रॉकेट साइंस। ये सिंपल एक फाइल, तो यहाँ पे भी मैं सिंपल एक फंक्शन यूज़ करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे भी मैं इसी तरीके की चीज़ें कर सकता हूँ सपोज। और अगर मुझे इसको भी रन करना होगा तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे जब रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। यू कैन सी माई आउटपुट इज़ 9.0। या फिर यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको रन कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप पाईचार्म यूज़ करें या VS कोड करें, दोनों में आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, या और कोई अगर एडिटर आप यूज़ करते हैं तो आप इसको भी यूटिलाइज। सो मेन चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। ठीक है, सो लेट्स मूव बैक टू आवर VS कोड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट है। तो अभी तक हमने सिंपल एक चीज़ पढ़ी कि भाई सिंपल मैसेजेस कैसे डिस्प्ले करनी है, कोई एक्सप्रेशन अगर हमें एवेल्युएट करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इफ़ वाई वी आर लर्निंग पाइथन, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ताकि वी शुड लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? तो प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम, it is going to always have an input, some data which is having a problem which you need to solve, right? तो आपने क्या करना पड़ेगा काम, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है तो आपको पहले उस प्रॉब्लम को लेना पड़ेगा। यू नीड टू टेक दैट प्रॉब्लम एंड स्टोर इट समवेयर, देन थिंक अबाउट द सोल्यूशन। फिर आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड एक पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटपुट आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं उसको, राइट? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी हमारे पास। अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट टू गिव अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू स्टोर दैट प्रॉब्लम। आपने पहले उस चीज़ को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, फिर आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट? तो उस चीज़ को कैसे करेंगे? फॉर दैट वी यूज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेरिएबल्स। तो हमारे पास हर एक लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हमारे पास, लेमैन के टर्म में आप बोल सकते हैं एक कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और उन्हीं वेरिएबल्स को यूटिलाइज करके उन्हीं के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके देन वी कैन डू सम वी कैन अप्लाई सम एल्गोरिथम्स, फिर हम अपना लॉजिक लगा के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? सो वेरिएबल्स है क्या? अगर कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, डिफरेंट बुक्स लिखती है कि इट्स अ लोकेशन ऑफ ए मेमोरी दैट हैज़ अ नेम एंड कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू, या कुछ बुक्स कुछ और लिखते हैं। बट मेन ऑब्जेक्टिव इसका आपको पता होना चाहिए कि यूटिलाइजेशन, मुझे वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों है, वाई वी यूज़ वेरिएबल्स। तो आप इसको बोल सकते हैं भाई मुझे एक सिंपल मैसेज को डिस्प्ले कराना है या मुझे किसी के नाम को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे मैं उस चीज़ को स्टोर करूँ, या मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, मीन्स वो नंबर्स पहले स्टोर करने हैं, फिर तभी मैं उनको ऐड कर सकता हूँ जब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर हो सकती है। तो उसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। अब पाइथन की एक चीज़ है हमारे पास, पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि भाई जो डेटा आएगा उसका टाइप क्या है। लाइक इन सी वी यूज टू हैव वन थिंग इन माइंड, अगर मेरे पास कोई डेटा है उसका टाइप क्या है, बिकॉज सी अगर हम बात करते हैं वो टाइप सेफ लैंग्वेज है। स्टैटिकली यू नीड टू थिंक अबाउट, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे पहले वो देखना है कि उसका डेटा क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको उसी टाइप का कंटेनर बनाना पड़ेगा। और वो डेटा का नेचर क्या हो सकता है? इट कैन बी एन इंटीजर, it can be a float, it can be a double, it can be a string, it can be a char, it can be an object, it can be an array। तो ये सारा हमारे पास डेटा रहता है, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन रहती है, और उसी हिसाब से हमें कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इन पाइथन। आप सिंपली क्या करेंगे, आप एक कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर सीधे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे।
अब वो वेरिएबल जो है हमारे पास, अब वो जो कंटेनर है उसको बनाए कैसे? सो पाइथन में काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। आपने करना कुछ नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज आई वांट टू स्टोर अ नेम, आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल नेम, आई कैन गिव इट अ नेम एज नेम। बट रिमेंबर दैट जो आप नाम दे रहे हैं वेरिएबल का, ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री डिफाइंड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये कन्फ्लिक्ट करेगा। तो आपको नाम ऐसा देना है जो कोई कीवर्ड नहीं हो। नाम में आपको लाइक ऐसे स्पेस नहीं देनी है, आप स्पेस के बदले अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या पहला कैरेक्टर जो है आप कोई इस तरीके से कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं दे सकते या कोई नंबर नहीं दे सकते, और यू कैन यूज अंडरस्कोर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम। सो ये नेमिंग कन्वेंशन हो गई कि जो मैं कंटेनर बनाऊंगा उसका नाम कैसा होना चाहिए, और उसके बाद अगर उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वी नीड टू यूज एन ऑपरेटर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यहाँ पे इज इक्वल टू बोलते हैं। प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। It is job is to assign a value. Suppose, for instance, I want to store a name. So name is a bunch of characters. So it is actually a string. So in order to store a name, I need to use single quote or double quote. Suppose, let's say Rahul, for instance. तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एक नाम स्टोर किया राहुल। I want to display it, I can say print name and let's run it, और यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, सर व्हाई नॉट आई कैन यूज डायरेक्टली प्रिंट, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं राहुल क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ, रादर देन क्रिएटिंग ए वेरिएबल, फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करना, फिर उसके बाद रन करना। तो ये भी तो वही कर रहा है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज है। व्हाट इफ सपोज आप एक किसी पर्टिकुलर यूजर की मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अब उसकी किसी इंफॉर्मेशन में चेंजिंग आ गई, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं लिखूंगा प्रिंट माय नेम इज राहुल, फॉर इंस्टेंस लेट्स से राहुल, फॉर इंस्टेंस राहुल likes cricket, suppose. राहुल लाइक्स फूड। सपोज अगर हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज रिपीट हो रही है, दैट इज नेम राहुल, राइट। तो कल को इसके नेम में चेंज आ गई, जैसे आप अपने प्रोफाइल में चेंजेस लाते हैं, कल को आप नेम एडिट करते हैं, तो जहाँ जहाँ वो नाम यूज हुआ होता है वो आपको हर एक जगह चेंज नहीं करना पड़ता है, यू चेंज ओनली एट वन प्लेस। सो बिहाइंड द सीन होता क्या है, इन बैकग्राउंड व्हाट इज हैपनिंग, जहाँ जहाँ वो नाम यूज हुआ होता है वहाँ पे एक्चुअली हमने वेरिएबल यूज किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राहुल है, तो यही चीज़ अगर हमें इसमें अगर कल को हमें चेंजिंग लानी है, सपोज राहुल सपोज जैन फॉर इंस्टेंस, तो मीन्स मुझे मैन्युअली फिर हर एक जगह चेंज करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये काफ़ी हैक्टिक हो सकता है, बट इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ वेरिएबल्स, सो दैट हम उन वेरिएबल्स को डायनेमिकली चेंज कर सके। जैसे फॉर इंस्टेंस अब जहाँ जहाँ मैंने राहुल यूज़ किया, आई कैन रिमूव दैट, आई कैन सिंपली यूज कॉमा एंड आई कैन यूज द, is my screen visible? Hello, is my screen visible? Yes, Yes. sir. Okay. So you can see, sorry for the inconvenience, internet डिस्कनेक्ट नहीं होगी। सपोज कोई नोटिफिकेशन है, सपोज या आप किसी को मैसेज भेजते हैं, फॉर इंस्टेंस खाली नेम डिफरेंट होता है, कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, तो आप सेम वो पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं कि जैसे मैं लिखूंगा प्रशांत फॉर इंस्टेंस, रन करेंगे वन। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जस्ट कोई भी मीनिंगफुल नाम देना है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, एंड देन यू कैन असाइन एनी वैल्यू। क्लियर? आगे चलते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं। सपोज पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, लाइक आई सेड कि ये नेम वेरिएबल है, मैं इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई ये खाली स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं और इसका टाइप भी इवन चेक करूं कि इसका डेटा टाइप क्या है, सो आई कैन यूज अ टाइप
और यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी अगर मुझे चेक करना होगा, सो इट कैन गिव मी द डेटा टाइप. यू कैन सी इट इज़ एन इंटीजर. बट इसी सेम वेरिएबल को अगर कोई और एक चीज़ असाइन करेंगे, रन करेंगे, राइट नाउ यू कैन सी इट इज़ टेलिंग मी इट इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. बिकॉज कोड जो है पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर उसके बाद ये वाली लाइन हो गई, और इस लाइन में हम एक स्ट्रिंग को इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं. अगर इसी को मैं कॉपी पेस्ट इधर कर रहा हूँ, इससे पहले करता हूँ, तो अब मुझे दोनों चीज़ें मिलेगी. पहली लाइन में दिखा रहा है इंटीजर है, और यहाँ तक पहुँचते ये दिखा रहा है इट्स ए स्ट्रिंग डेटा टाइप. सो कहने का मतलब बेस्ट प्रैक्टिस रही यही होती है, या जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. कि नेम आप जो रखेंगे वही रखेंगे जो उसका पर्पस होगा. सपोज इफ़ यू आर स्टोरिंग ए नेम, तो वेरिएबल भी वैसे रख. इफ़ यू आर स्टोरिंग ए प्रोडक्ट नेम, तो बेटर है कि उसका नाम भी हम वैसे रखें. अगर किसी कंपनी का नाम, तो उसका वेरिएबल का नाम भी वैसे रखें, कंपनी नेम. या अगर किसी मैनेजर का नाम स्टोर करें, सो यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल विथ अ नेम, मैनेजर नेम, तो फिर अकॉर्डिंगली उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर. तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है जो आपने ख्याल रखने हैं. ठीक है, तो यहाँ तक होगी हमारे पास सिंपल चीज़ कि भाई कैसे वेरिएबल्स हम बनाते हैं और कैसे उनके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं. इसी तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स आप बना सकते हैं. सपोज एज, मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ सपोज 20, और अगर इसी को मैं डिस्प्ले कराऊंगा एंड आई वुड लाइक टू डिस्प्ले दिस वैल्यू, सो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट आएगा इट इज़ गोइंग टू बी 20. जो भी वैल्यू हमने इसमें असाइन किया तो वो वैल्यू आ गया. और साथ ही साथ इफ़ आई वांट टू चेक द डेटा टाइप, आई कैन आल्सो यूज़ अ कॉमा सेपरेटर एंड आई कैन रन इट अगेन, एंड यू विल सी 20 वैल्यू आ गया. उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले कराया कि इसका टाइप क्या है. सो इट इज़ एन इंटीजर टाइप. तो ये हमने नहीं डिसाइड किया, इंटरनली जो वैल्यू इसमें असाइन हो गया, ऑटोमेटिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने खुद ही आइडेंटिफाई किया कि एक इंटीजर डेटा है, तो इस तरीके से इसने इसका डेटा टाइप बता दिया. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि पाइथन जो है हमारे पास ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि भाई इसमें कौन सा डेटा जाएगा या कौन सा नहीं जाएगा, किस टाइप की इन्फो. तो दैट मीन्स यू कैन स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ वेरिएबल. तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? Am I audible? यस सर, क्लियर है. ओके ओके. सो चलते हैं वापस, आगे चलते हैं. अब कुछ चीज़ों को और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं. Suppose if I have a variable, how I can display it with a simple user defined message. Like I have a name, let me assign it a value of suppose John. I want to display a user defined message with. You can use like this, welcome. I can simply use a comma separator, then I can use the variable name. So what will happen? I can get a welcome John. ये एक तरीका है. आपके पास दूसरा ऑप्शन है, rather than using this आप concatenate भी इसको कर सकते हैं, but you need to leave a space here. बट जब आप comma separator यूज़ करते हैं तो आप देखते हो इसमें खुद ही एक स्पेस आ जाती है. बट जब आप concatenation करते हैं तो आपको इसमें स्पेस देनी पड़ेगी, वरना ये स्पेस नहीं आएगी. तो ये दूसरा तरीका है. आप किसी भी वेरिएबल एक यूज़र डिफाइंड मैसेज के साथ इसको कैसे बाइंड करें, उसको डिस्प्ले करें. तीसरा तरीका है हमारे पास, यू कैन यूज़ एफ स्ट्रिंग. आपने क्या करना है काम, एफ स्ट्रिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे वेलकम, जो भी आपकी मैसेज होगी. अब जो वेरिएबल होगा जिसके अंदर डिस्प्ले आपको जो मैसेज डिस्प्ले करानी है, आपको उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, एंड बाहर आपको फिर एफ स्ट्रिंग यानी कि ये एफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा. जो हम इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी करली ब्रेसेस के अंदर होगा इसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके अकॉर्डिंगली इसको आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर वैल्यू जो भी उसके अंदर होगा वो डिस्प्ले कर देगा. सो ये तीनों तरीके हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं. बस जो कंकैटिनेशन है इसमें एक इशू आ सकता है कि एज वी नो कंकैटिनेशन खाली स्ट्रिंग को होती है, स्ट्रिंग इंटीजर को कंकैटिनेशन नहीं होती है. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पे 21,
और अगर मैं यहाँ पे कंकैटिनेट करूँगा या यहाँ पे हम एक मैसेज लिखेंगे, हाय माय नेम इज जॉन, फॉर इंस्टेंस लिखूंगा आई एम जस्ट प्लस एज। अब ये जो एज है यहाँ पे हमारे पास, ये एक इंटीजर डेटा है। if we will try to execute it, you can see we are getting an error. Only concatenate string, not int. That means जो concatenation हम करते हैं वो खाली string string को हो सकती है, int पकड़ नहीं आया। अगर मैं ये कमिट करूंगा फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। सो दैट मीन्स दिक्कत खाली कहाँ पे हो रही है, हमारे कंकैटिनेशन में। जब हम कंकैटिनेट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ तो ये इशू हो रहा है। अब इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? वन ऑप्शन यू है, आप इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। ये जो आपका एज डेटा टाइप है, इसके अंदर जो इंटीजर वैल्यू है, आप इसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रिंग में। सो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम एक स्ट्रिंग फंक्शन इस तरीके से यूज़ करेंगे, इस पूरे वेरिएबल को इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी एज होगा उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? हमारे स्ट्रिंग में। सो आप देख सकते हैं अब कोई एरर नहीं आया हमारे पास। यू कैन सी द आउटपुट इज हाई माय नेम इज जॉन। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मैसेज आ गई, कोई एरर। इसी तरीके से अगर बाकी डेटा टाइप्स में भी आपको किसी को कन्वर्ट करना होगा, सपोज आपको फ्लोट में करना है तो आप फ्लोट फंक्शन आगे लगा सकते हैं, आपको किसी को इंट में करना है तो आगे इस तरीके से इंट, फिर उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो उसमें इसको कन्वर्ट कर लेगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी कि जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल टाइप कास्टिंग, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा। तो अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू शुड नो दिस बेसिक टर्म, typecasting is nothing just a converting one data type into another data type. So maybe you are trying to display a message like a string, you are concatenating it with a float. So at that time, if you'll get this error, you can handle that error by simply converting that error into a string, or there are other ways like you can use exception handling for handling that kind of exception. तो ये है सिंपल तीन तरीके। इसी तरीके से और एक तरीका भी हमारे पास, फॉर्मेट फंक्शन, जो आप यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमने कैसे एक वेरिएबल को एक यूज़र डिफाइंड मैसेज के साथ डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। बट अभी तक जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो सारा डेटा हम स्टैटिकली असाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स के अंदर। बट अगर यही इंफॉर्मेशन हमें यूज़र से लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं? जैसे सपोज नेम वेरिएबल है, आई वांट टू टेक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र rather than providing it statically here. So how we can do that? We have a predefined function in Python that is called, Shabash, anybody has any idea? Input function. Yes. Input, sir. Yes, guys. So we have a function called input function. So we can use that input function for accepting data from a user. So let me have an example. So I can simply say name and I can use input function. And inside input, I can use also a message like enter name. That's it. If I'll run and let me print name, let's try to execute this code and see what is going to be the output. You can see it is asking me an name. Let me add, suppose Adil for instance. Let's click and you can see जो भी मैंने वैल्यू दे दिया वो सारा इसमें स्टोर हो गया. So whatever name I gave, it has been stored inside this variable, name variable, and we are displaying it. But as you can see, the moment if I am running it, my cursor is at the same place where this string ends. So I want that the cursor should move to the next line. So what I can do, I can use a escape character here, \n. So what it will does, it will move our cursor to the next line. Let me run it again. Let's run it. And you can see enter name. Let me add John again and you can see I'm getting the name. So ये एक तरीका है हमारे पास. Another way is आप जो डिस्प्ले का काम है, मतलब यूजर को एक मैसेज देने के लिए what he needs to give an input,
This is one way you can use an input function. Inside input function, you can use a single quote or double quote, whatever message you want to give a user. You can provide that message within single quote or double quote. Another option we have, we can use simply print, and we can do display enter your name, and simply if I want to store it, I can use only at that time input. That's it, and I can simply print my name. That's it. Now let's run it, and you will observe one thing here. Our cursor is moving automatically. New line, we haven't provided anything here. So what is actually happening here, जो हमारा print function है internally इसके end पे और एक parameter default add करके, that is called end parameter, जिसमें by default backslash n डाल के ही होता है. जैसे मैं लिखूंगा राजेश, तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट आ गया. But I want that this cursor should be at the same place. By using print function, what I can do, I can use end. Inside this end, I can keep it like this. Let me run it now, and you can see my cursor is at the same place where my string ends. So what is happening by default, it is like this. If we are not specifying end parameter, what is behind the scene in the print function, it is default adding inside end backslash n. Let me run it again, and you can see now my cursor is moving again to the next line. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आ गई. So that means whenever we need to take an input from a user, we can use a function called input function. But let's see what happens if we want integer data and we want to do some addition. What is the problem we are going to face? Let's say it. So let's say print, and I can say enter number 1. Let's create a variable num1 and store some value inside it by using input function. Let's copy the same line and paste it, and let's say enter number 2, and let's create another variable number 2. Let's say print and num1 plus num2, and let's run this code and see what is going to be the output here. Enter number 1, let's say 3, 4. You can see I am getting automatically 34. Is it right? No, because 3 plus 4 is equal to 7. But what I am getting here? 34. What is actually happening here? Let's write it again. Let's try it again. 2 and 2. Look, I am getting 22. So what is happening? It is actually concatenating it. So this means ये जो हमारी input function है, it is taking every data as a string. अगर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, वो इसको एज अ ट्रीट क्या कर रही है? स्ट्रिंग कर रही है. इसलिए जब num1 में जो जा रहा है वो स्ट्रिंग जा रहा है, num2 में भी जा रहा है स्ट्रिंग, और बीच में प्लस जो है उसको कंकैटिनेट कर रहा है. तो इसलिए ये दो चीज़ें कंकैटिनेट होके हमारे पास दिख रही है. दैट मीन्स अगर मैं num1 में मैंने 2 डाला एंड नंबर 2 में 2 डाला, तो इसको ऐसे एज अ ट्रीट किया, 2 एज अ स्ट्रिंग, 2 को भी एज अ स्ट्रिंग, देन इट इज कंकैटिनेटिंग इट. But we needed actual integer value. So there comes again typecasting. I said whatever input I am getting from a user inside it, like this. Now if I run it again, and let's say 3 and 3, you can see output is 6. Now I am getting the exact output right now. Let's try it again. Let's say 2, 2 and 1. So you can see now it is working fine. So this is how we can store a particular value inside a variable. Input is the way, by accepting the input from a user, but you need to take care of one thing. Whatever data you are taking from the user, you need to convert it accordingly, so that you will get an exact data type of a particular variable. What if I'll try to store the value, I want to do addition of float numbers? What will happen? Let's see. 2.1, and you can say I'm getting an exception here.
इट इज टेलिंग मी इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 दिस. सो ये क्या कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया और यू आर गिविंग मी अ फ्लोट, सो यू कांट डू दैट. व्हाट यू कैन डू, अगर आपको फ्लोट को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट. अब चूंकि वी नो फ्लोट जो है वो दोनों चीज़ों को स्टोर कर सकता है, माई इंटीजर as well as my float values. You can see 12.3 and let's say 2. So we are getting the exact data here, 14.3 value. So in short, इस तरीके से हम यूजर से डेटा पकड़ सकते हैं by simply using an input function. इनपुट फंक्शन एक ऐसी फंक्शन है जिससे हम डेटा पकड़ते हैं यूजर से, फिर अकॉर्डिंगली हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करते हैं. यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी. इसी तरीके से अगर आपको कोई और डेटा लेना है तो स्ट्रिंग पकड़ना है तो बाय डिफॉल्ट इनपुट तो स्ट्रिंग ही लेता है. अगर आपको नाम, एड्रेस, ऐसी चीज़ें लेनी है तो आपको उस टाइम कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इनपुट उसको एज अ ट्रीट स्ट्रिंग ही करता है. तो ये होगी हमारी यहाँ तक चीज़ें कि भाई कैसे हम यूज़र से डेटा पकड़ सकते हैं और कैसे फिर उसको हम दिखा सकते हैं. ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज. अभी तक हमने सिंपल जो प्रॉब्लम्स देखी कि भाई हाउ वी कैन एक्सेप्ट अ डेटा एंड हाउ वी कैन स्टोर इट. नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इफ वी नीड टू सम conditionals. What if we need to check a data, is it a right data or not? For example, you have been asked to accept a name from a user, but you have been asked that name should be John. If it is another name, you need to display a message, sorry, you are not welcome. If it is John, then you have to display a message, welcome, you are John. Suppose you have been asked that you need to create an application uh, uh, for our college. In that, if a guest for in we can say, suppose we have any ceremony going in the college, so you need to welcome to all guests, they are present, you need to display a message, welcome whatever guest is. If or every guest should have a particular card, when he will swipe a card with a machine, he will get a message, welcome or sorry, you are not allowed. So that means this time we need to check the data. If it is that data based on your particular condition, then you will give a particular answer or you will decide a particular decision. So in order to solve those problems, we use control statements, also known as conditional statements. Like we have if else. So suppose, let me give an example, this John example. I have been asked to create a program where you need to display a message. You need to ask name from guest, so enter your name. Let's say, please enter your name. So whosoever is going to be, he will give his name. We are going to store it. So behind the scene it's a string. So जो आपने कोड किया होगा आपने इस तरीके से किया होगा. फिर अकॉर्डिंगली आप एक कंडीशन आपको चेक करनी है, भाई अगर वो नाम ये है तभी उसको आपको वेलकम करना है, अगर नहीं है तो आपको उसको वेलकम नहीं करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जो भी वो नेम में देगा, आई विल कंपेयर इट विथ सपोज जॉन, और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे प्रिंट वेलकम, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे सॉरी यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट वेलकम, और यहाँ पे आई कैन डिस्प्ले नेम वेलकम, और यहाँ पे भी हम अब इसको अभी थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे आपको समझाने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए. लेट्स से इसको रन करते हैं. प्लीज एंटर योर नेम, मैंने लिखा सैम, तो यू कैन सी आई एम गेटिंग ए मैसेज, सॉरी यू आर नॉट वेलकम सैम. तो व्हाट हैपेंड हियर, जो भी हमने नाम दिया वो स्टोर इसमें हो गया. फिर अकॉर्डिंगली हमने इसको चेक किया, अगर वो नाम किसके बराबर है, जॉन के बराबर, तो वेलकम दिखाओ, अगर नहीं है तो यहाँ चला गया, राइट. तो बिकॉज नाम जो है वो जॉन के बराबर नहीं था इसलिए वो किधर गया, एल्स में. बट व्हाट इफ अब अगर नाम जॉन दिया उसने, यहाँ पे आ गया हमारा जॉन, तो वेलकम जॉन हो गया. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वी आर कंपेयरिंग ओनली
our name with one name, that is John. What if we have number of guests? तो उनके साथ कैसे कंपेयर करेंगे? So there comes another part. So यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे, let's call it guest list. हम एक लिस्ट वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर उन नामों को हम स्टोर करेंगे. सपोज जॉन, राहुल, let's say Pinak, let's say Amir, Akash. For instance, these are the guests. They are going to be allowed. So how I'm going to do that now? How I'm going to solve this problem? Simply what we can do, let me comment this code, copy and comment. अब इस चीज को हम कैसे करेंगे? सो नाउ मुझे एक नाम के साथ इसको चेक नहीं करना है. आई नीड टू चेक इट विथ अ लिस्ट ऑफ नेम्स. सो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आप देख रहे हो, ये एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसको हम लिस्ट बोलते हैं. लिस्ट होता है क्या हमारे पास? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं, या एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. और हर एक वैल्यू जो होगा उसकी एक पोजीशन होती है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो लिस्ट को भी हम एक्सप्लोर पूरी तरीके से करेंगे. अब इस सिचुएशन में ये डेटा स्ट्रक्चर मेरा फिट बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया. इफ वी वांट टू चेक, you want to allow multiple names in the guest list, so how you can do that? Simply we have a keyword here called in. तो आप इस membership operator को use कर सकते हैं, इस तरीके से use करेंगे. Let's try and execute it now. Suppose I would like to say Amir, so you can see Amir is allowed. So what happened actually here? So जो भी हमने नाम पकड़ा उसको हमने चेक किया कि इसके साथ इसको चेक करो, क्या वो नाम इसके अंदर है, इस गेस्ट लिस्ट वेरिएबल के अंदर जो है, क्या उनमें है वो? यस इट इज. तो हमारा ए ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और मैसेज क्या आ गई? वेलकम. तो इसी तरीके से फिर से एग्जीक्यूट करेंगे. और इफ आई विल चेक आकाश फॉर इंस्टेंस, सो यू कैन सी इट इज ऑल्सो देयर. तो इस तरीके से हमारे पास मैसेज आ गई वेलकम. बट व्हाट इफ आई गिव अनदर नेम, लेट्स से सो यू कैन सी मैंने कैरा दे दिया और यहाँ पे क्या आ गया? सॉरी यू आर नॉट वेलकम, बिकॉज वो हमारी गेस्ट लिस्ट में. अब ये तो थी 1 2 3 4 5 लिस्ट, 5 नामों की एक लिस्ट थी हमारे पास. बट रियल वर्ल्ड में इफ यू हैव अ वेरी लार्ज लिस्ट, व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम? सो रिमेंबर दैट जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स भी मैटर करते हैं कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपने किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज. पहले हमने एक नॉर्मल वेरिएबल यूज किया था जो एक टाइम पे एक ही वैल्यू यूज कर रहा था, या उसके साथ हम कंपेयर कर, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक आ गया. अब अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को चेक करने के लिए मैंने एक नया डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने कहा लिस्ट. तो ये क्या है? लिस्ट एक कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की. लिस्ट ऑर्डर्ड रहता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी आप स्टोर कर सकते हैं. लिस्ट इंडेक्स्ड होता है, यानी कि हर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को या सिंगल एलिमेंट को आप डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोजीशन. और यहाँ पे जो पोजीशनिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो इसकी पोजीशन होगी 0, इसकी 1 2 3 एंड सो ऑन. बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से रेज कर रहा हूँ, व्हाट इफ आपके पास बड़ी सी एक लिस्ट है. अब आप हर एक चीज को तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, जॉन, राहुल. तो नंबर 1 आपके पास ऑप्शन है, व्हाट यू कैन डू, आप एक जेसन फाइल बना सकते हैं, जो हम देखेंगे थ्रू आउट द सीरीज. हम एक जेसन फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम या तो स्टोर कर सकते हैं. वन ऑप्शन इज दैट. अनदर ऑप्शन इज आपके डेटाबेस के अंदर डेटा है, तो आप उस डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके यहाँ पे फिर ला के उसके साथ उसको चेक कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोई एपीआई है, जब उस एपीआई को आप हिट करते हैं वो आपको एक डेटा दे रहा है, तो आप उस एपीआई से डेटा लेके किसी जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर करके फिर एक एक सेम लॉजिक उसके साथ उसको चेक करके वो भी कर सकते हैं. तो ये 2-3 सिचुएशंस हो सकती है रियल वर्ल्ड में जो आप फेस कर सकते हैं. व्हेन यू हैव अ लार्ज डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सर्वर इन डेटाबेस. हाउ टू एक्सेस इज, वन ऑप्शन इज यू कैन क्रिएट अ कनेक्शन with the database and you can get the data and then you can use some queries. Another option is if that database is already existing, if suppose company is having already a project ongoing that is having existing UI, so what they can do, they can give a URL, एक API जिसको हम बोलते हैं.
एक यूआरएल देंगे, बोलेंगे भाई व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हिट इट एंड इट यू विल गेट अ डेटा। सो दैट मीन्स उन्होंने वो लॉजिक उसके अंदर लगाया होगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे आपको एक डेटा मिलेगा वहां पे। तो आप उस डेटा को कैश करके किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसके साथ उसको चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस है जिस तरीके से आप लार्ज डेटा को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें एक्चुअली दिखानी थी कि भाई कैसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने चेक किया कि भाई अगर नाम है गेस्ट लिस्ट में तो वेलकम करो, अगर नहीं है तो उसको वेलकम नहीं करना। तो ये एक सिंपल चीज आ गई कि भाई हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यानी कि कंडीशन बेस्ड अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी, हाउ वी कैन डू दैट, सिंपली वी कैन यूज इफ और एल्स। सो इफ के अंदर आपने कंडीशन देनी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी जो भी आपको ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना होगा यू नीड टू कीप इट इनसाइड द इफ। अब ये सिंगल एक स्टेटमेंट थी, बट रियल वर्ल्ड में आपके पास एक लार्ज कोड हो सकता है जो आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और इसी तरीके से आप एल्स के अंदर भी वैसी मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो ब्लॉक आपको एग्जीक्यूट कराना होगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई सभी को? एम आई ऑडिबल एवरीवन? Any question, any confusion so far? No, sir. Is it clear? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे, मतलब समझने में? सर लिस्ट की प्रॉपर्टी एक बार और बता दीजिए, मतलब म्यूटेबल होती है और इंडेक्स Okay. होती है मतलब। हाँ, लिस्ट जो होता है हमारे पास, सबसे पहले लिस्ट जो होता है ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर इट मीन्स द वे यू हैव गिवन द डेटा। लेट मी शो यू फॉर इंस्टेंस, लेट मी कमेंट दिस लाइन्स ऑफ कोड। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे गेस्ट लिस्ट को, तो आप देख सकते हैं जिस वे में मैंने डेटा प्रोवाइड किया था उसी वे में डिस्प्ले होगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड, राइट। उसके बाद मैंने कहा ये इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स मीन्स सपोज इफ यू वांट यू नो आई एम गेटिंग ऑल द डेटा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लिस्ट, बट व्हाट इफ आई नीड ओनली राहुल? So like I said, guest list is list is an index. That means every separate element have its own position. So positioning starts here 0, 1, 2, 3, 4 like an array. So what I can do, I can use simply is guest list के अंदर जो first One. position पे है, if I'll execute it so I'll get a Rahul, you can see. Next important चीज मैंने कहा, it's a mutable. What does mutable means? If you are creating a list, you can change it lately. Suppose I can say guest list of 0, I want to change John, I would like to replace it with Pam. Now if I display my list and run it, and you can see instead of John I am getting now Pam. So that means it is a mutable. So once you are assigning a value in a list, you can change them lately. That is called mutability. यहाँ तक clear हो गए? Okay. Another thing I said, another property of list is we can store duplicate values. Like let me store again Rahul here, and let's run it again, and you can see same name we can add it. So these are the basic properties of a list. Clear है यहाँ तक? Any confusion? I hope you No, got sir. the answer, Clear है। right? Okay, okay. So यहाँ तक चीजें clear हो गई बेटा? कोई confusion तो नहीं है ना? कोई question तो नहीं है ना? No, sir. सभी को? So Sir, I know. Yes, yes, I. sir, Python is dynamically type language. Sir, वो point अगर फिर से explain कर दीजिए. Okay, okay. Let me explain it again. Good. So suppose I have a variable. I have a name. Let me assign a value Sahil. Okay. If I'll display the type of this particular variable, we know it will give us, it's a string data type, right? Yes, sir. We didn't mention anywhere it is a int, float or string. So whatever assign we have given to this value, a variable, it automatically understands, okay, it's a string. Now another next thing is, suppose I will use the same variable. Now this time I will assign it a integer value. If I'll check it, this time I'll get what? I'll get a type integer. Dynamically type means you don't need to worry about data type. So you can assign any value. It will internally
handle this part, and it will tell you that this is a particular this type of data type. So like in C, if we need to store a suppose integer data type, we use like int, then anything like suppose a, then we store values, right? But here you don't need to worry about types. So that's what I said. Python is dynamically typed. That means whatever value you are assigning, you don't need to worry about it. You don't need to use a data type here. You got my point? Yes, sir. Thank you. Okay, sure. Anybody has any question? So let me, give one thing about, for those students, they have joined our previous sessions in previous month. If you remember, हमने basic चीज़ उसमें कुछ clear की थी. बट जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, जो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी चीज़ें आने वाली है. तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जल्दी जल्दी रैप कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको एक अच्छा सा ग्रिप आ जाए पाइथन पे, और साथ साथ बेसिक चीज़ें भी क्लियर हो जाए और एडवांस कॉन्सेप्ट भी जो आपके वो क्लियर हो जाए. अब इसीलिए आज कुछ बेसिक चीज़ें हो गई और साथ साथ कुछ कल और बेसिक, उसके साथ कुछ और एडवांस चीज़ें ऐड होंगी, सो दैट दोनों जो हमारे अभी ऑडियंस है, बिगिनर्स और जो ऑलरेडी प्रीवियस है, दोनों एंजॉय कर सके हमारे लेक्चर्स को. क्लियर है? तो अभी तक की जो स्टैंडर्ड थी लेक्चर की, कोई टफ तो नहीं थी? किसी को कोई टफनेस तो नहीं लगी किसी चीज़ में? सब इजी रहा सभी के लिए? Yes, sir. आई होप सो. Yes. Okay. So simple assignment for everyone. Just do the same practice at your home. एक Python install करिए. जो beginners हैं, जब तक देखो कोडिंग हर एक को आएगी, लेकिन कोडिंग का एक ही मंत्र है, सिंपली यू नीड टू प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा, कोई भी कोडिंग आपको नहीं आएगी. कोडिंग टफ नहीं है, बस आपने करना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस. पहली बार जब आप किसी चीज़ के साथ फेमिलियर होते हो, तो हर एक चीज़ को आपको नई लगती है, तो उसको समझना थोड़ा सा टफ रहता है. इट्स अ कॉमन थिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको लैंग्वेज ही वही से बताएगी कि हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू डू इट. बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे 1 hour 2 hour, सो दैट पहले आपको बेसिक सिंटेक्स जो है वो क्लियर हो जाए. Once your syntax is clear, suppose let me show you an example. For instance, घर पे आप जब नाम लिखोगे, जो बिगनर्स होंगे, वो हल्की सी स्पेस देंगे, एरर आएगा. बिकॉज पाइथन में इंडेंटेशन मैटर करती है, यानी कि जो भी आपको चीज़ें लिखनी है, यू नीड टू राइट इट टू द एक्सट्रीम ऑफ द लेफ्ट, यानी कि आपको पूरा उसके साथ लिखना पड़ेगा. बट सर यहाँ पे तो आपने इफ एल्स यूज़ किया था, इसके अंदर तो हमने लेफ्ट साइड से नहीं. तो ये चीज़ और एक यहाँ पे क्वेश्चन होने चाहिए थे आपके एंड से, कि भाई जो एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक में हमें एक टैब देना होता है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये चीज़ इसके अंदर है, यानी कि ये चीज़ तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी. सो इफ इज अ ब्लॉक, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस आ गई. बट अगर कोई ब्लॉक जैसी चीज़ नहीं है लाइक दिस, तो आपको हर एक स्टेटमेंट पूरे लेफ्ट पे लिखना पड़ेगा. तो ये बेसिक सिंटेक्स है इस लैंग्वेज का. और अगर आपने स्पेस दे दी, वहाँ पे आपको यूजुअली ये एरर आएगा. सो एरर्स पढ़िए. एरर भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डीबगर भी एक कंपनी में एक रोल होता है जिसको हम बोलते हैं डीबगर, जो डीबगिंग करता है, यानी कि आपके बग्स को फिक्स करता है. तो वो करता कुछ नहीं, इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, एरर्स देखता है. जैसे यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है. अगर आप बिगनर हो तो आपको पहले ये समझ नहीं है. जिन्होंने इस चीज़ को ऑलरेडी एनकाउंटर किया होगा, दे विल नो ओके इंडेंटेशन एरर, दैट मीन मैंने कहीं पे स्पेस डाली है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके इस लाइन पे जाके उस चीज़ को ठीक कर सकता है. तो एरर्स को डरिए मत, ये इतनी बड़ी खतरनाक चीज़ कुछ नहीं है. जस्ट अगर आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से, देन आप उस लाइन पे जाओगे, तो एग्जैक्टली आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ आ जाएगी. क्लियर है सभी के लिए? एनीबडी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ तक? क्लियर है ना? ओके, आई थिंक Yes. Okay, sir. ओके पिना. Thank you, sir. Okay, thank you. So inshallah हम कल we will meet again on the same time. Sure. So we will discuss more things, more some advanced and some basic concepts together, so that every audience will enjoy our lectures. I hope so. Okay. Sure, sir. Okay, sir. Thank you for everyone. Thank you. Thank you.